Okay, so last Saturday we came to the mind control, beginning of the mind control, where we had discussed where are the thoughts coming from, and which are the human qualities from which, due to which the thoughts are triggered, and that signal goes to the brain. Signal goes to the brain from the sensors. The processing is depending upon the human qualities. If your human qualities, selfish, lack of empathy, lack of compassion, lack of caring, ego, all the if the qualities are tuned negatively, then they trigger. इसको हम हिंदी में स्पंदन बोलते हैं. स्पंदन हुआ, जो जब स्पंदन हुआ तभी ईगो आया. फिर ईगो आने से फिर बाकी सब क्वालिटीज का टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जाना शुरू हुआ. और जब वो स्पंदन हुआ, स्पंदन वो भी होता है जैसे when you throw a stone in the water, तब वो स्पंदन होता है, तब वेव बनती है. उसी तरह ये भी in a peaceful tranquil environment, when the first disturbance occurred, that triggered multiple disturbance. And why that spandan happened, why that disturbance happens is also due to the cosmic. There's a reason where there is a energies, the work of energies, the planetary effect of the energies, which results in these four yogas. And yogas are nothing, these are different energy periods. The energy is varying as the sun is circulating, revolving around another star. So, due to the elliptic orbit, when the variation in the distance changes, the energy effect of the sun causes a change in the mental and physical faculty of the human body. So if you read that book, Yukteswar Giri's Holy Science, he has explained the astronomically astrophysics. He's used those terms to explain this entire cycle of yoga. So yoga is only a change of energy in a cyclic way, which is divided into four quadrants for ease of understanding. That there are certain characteristics in this cycle, certain characteristics, just due to the distance of the changing distance of the sun. So that's why the spandan happens. When we come to a certain energy level, that vibration happens, and then these qualities get triggered, the negative quality. And then the brain is processing based on these negative tendencies, or the nature which we call, and based on those tendencies, negative tendencies, the brain is processing and then making you do something wrong. And one wrong leads to many other wrongs. So that's how the behavior of humans becomes more negative, and that becomes slowly acceptable also. He also accepts, then the society starts accepting. So one by one, these changes keep happening. I'll wait. It's the beginning only. Avinash ji. Namaste, Avinash. ज्योति जी तो नहीं आएंगी, बट इनका पता नहीं शायद ये आएंगी कि नहीं. का नाम क्या है? अच्छा, हाँ, दिस she might come. She has been coming. Jyoti ji will not come. और तो पता नहीं कोई आएगा. So we just started discussing what we discussed last time, and we came to, now we want to talk about why the negative thoughts are getting triggered. We should come to that discussion slowly, but we'll go slowly. कोई जल्दी नहीं है कि माइंड कंट्रोल कैसे करना है वो आज ही बताना है. धीरे धीरे we'll develop that discussion and to make it more interesting. So we were just telling why the negative thoughts are coming, why is brain processing like that. तो वो मैं बता रहा था, शुरू में एक स्पंदन हुआ, उससे ईगो ट्रिगर हुई, फिर ईगो से और नेगेटिव क्वालिटी सब्सिक्वेंटली ट्रिगर होती गई. तो उसका मैं एक वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा था कि वो जो युग फॉर्मेशन क्यों होता है, उसमें हर एक युग में एनर्जी लेवल डिफरेंस क्यों होते हैं बिकॉज ऑफ सन्स एलिप्टिकल ऑर्बिट.
डिस्टेंस जो चेंज होता है उससे एनर्जी का डिफरेंस आता है और उसकी वजह से उसका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन पे, वो फिजिकल और मेंटल इफेक्ट दोनों होता है उसपे। उसकी जो मेंटल फैकल्टी है, फिजिकल फैकल्टी, दे go through variation due to the energy, because we are actually designed to operate in a certain energy environment. We, everything which is designed in this world, whatever even human designs, is also designed to operate in a certain range of the parameters. But whatever parameters are there, they are like, even voltage is there, voltage will be only plus minus 5 plus minus 10 to 30 volt plus minus 10, 5 ampere plus minus 10%, temperature 50 plus minus 5, और मैक्सिमम एंड मिनिमम का भी प्लस माइनस, वो एक टॉलरेंस रेंज होती है, एक रेंज होती है और एक टॉलरेंस होती है। उसके बाद से वो फेल हो जाता है। गर्मी में भी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? दिल्ली में जाओ, रोड रेज क्यों होता है? लोग वैसी गर्मी से परेशान है, तो वेरी विद अ स्मॉल स्पंदन दे गेट ट्रिगर्ड एंड दे लूज देयर बैलेंस एंड देन दे एंड अप फाइटिंग। और क्या, और कोई रीजन नहीं है। कोल्ड कंट्रीज में पीपल आर मोर काम relatively. They don't have this heating effect, but they have some other effect. So when these negative tendencies come into the human, they start acting on that. उनके जो विचार हैं और जो कर्म है वो उस तरह होने लगता है, और वो धीरे धीरे वो उसको एक्सेप्ट करने लगता है एज अ नॉर्मल। एंड धीरे धीरे वो सोसाइटी में एक नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। अभी हमारा जो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, वो गलत तरह से ही आ रहा है। अभी कल हम लोग हमारे सोसाइटी में मैंने स्क्रैबल गेम का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। तो एक एक प्रो प्लेयर है जो टूर्नामेंट में शी टेक्स पार्ट। तो वी यूज टू प्ले स्क्रैबल विथ क्लासिकल इंग्लिश। अभी उसमें क्या क्या वर्ड ऐड हो गए हैं, बोले नहीं ये भी चलता है वो भी चलता है। तो क्या ये भी चलता है वो भी चलता है? बोले नहीं, दुनिया आगे जा रही है। पीपल टॉक लाइक दैट। नमस्ते वैशाली जी, कैन यू हियर मी? या नमस्ते नमस्ते। सो तो ये क्या है, वो मॉडिफिकेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें हमें अपना कुछ फायदा दिखता है। पीपल आर नेगेटिवली कॉम्पिटिटिव दीज डेज, दे समहाउ वांट टू स्कोर, so they make things easy for themselves, which are actually not good. We are defeating the basic purpose. But there are some vested interest in this whole thing which actually start driving these changes, and we don't realize how we veer away from the reality. तो वो फिर सोशल सोसाइटी में एक्सेप्ट होने लगता है। फिर वो एक कल्चर बन जाता है, फिर हम उसको कल्चर बोलते हैं। वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर पे कितना स्ट्रांगली आ रहा है, उसके भी बहुत सारी रीजंस हैं। सो माइंड फिर वैसा ही हो जाता है, माइंड उसको नॉर्मल फील करने लगता है। तो अब वैसी ही कंडीशनिंग होने लगती है हमारे। आर किड्स आल्सो स्टार्ट brought up in that environment now. If you look at present generation, they, if you tell them anything, any traditional values, human values, family values, उनकी values उनको तो वो मालूम भी नहीं है। To accept those values is also a far off thing. Now a lot of things which have been normalized, like narratives, social narratives which have been imposed by the society, by the capitalism, consumerism, for their own, the military industrial complex, the industrial complex, the, you know, तो ये लोग अपने फायदे के लिए ऐसे नैरेटिव्स बना दिए, वो हम पे मार्केटिंग करके हमारे पे इम्पोज कर दिए। अब हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, उसी को नॉर्मल बोल दिए। बट अल्टीमेटली इफ यू रियली सी व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दीज लार्ज negative influences which have been imposed on the society through propaganda. Like father of propaganda was Edward Bernays from America. He started the propaganda. तो प्रोपोगंडा कर करके लेडीज को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रोपोगंडा से लेडीज को टारगेट ज्यादा किया गया। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमरिज्म बेनिफिट्स इफ लेडीज आर मैनिपुलेटेड, एंड इट इज इजियर टू मैनिपुलेट लेडीज देन मेन। तो वो इमोशनल ज्यादा होती हैं। Vaishali ji is here. Probably she will agree or not agree. She can always comment on that. But ladies को इसलिए target किया because if you see the market, 80% of the shops are targeting ladies only. So when you target ladies, you create certain narratives. It benefits them. उसकी खूब मार्केटिंग होती है। डायमंड क्या था? डायमंड पहले शायद डायमंड पत्थर ही तो था। डायमंड को प्रेशियस करके, प्रेशियस बना के उसको बेच रहे हैं लाखों करोड़ों में। उसके लिए आदमी भाग रहा है पैसे के लिए। सो ये जो सब हमारे को इन्फ्लुएंसेस डाल दिए, उसको हम नॉर्मलाइज कर दिए।
and also they not even normalize, they become the success factors. How many diamonds you wear, that becomes a success factor. तो इसको चेस करते करते हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, सोसाइटी में जो चेंज है वी हैव नॉट रियलाइज, बट नाउ व्हेन यू स्लोली रियलाइजेशन हैपनिंग कि हमारे दिमाग में हमारे वी आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, द the world is going through acute mental stress actually, and that acute mental stress अब उनको किसी को नहीं मालूम क्यों है, और किसी को थोड़ा सा मालूम भी पड़ता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. सो अब एक्सेप्ट कैसे करें, ईगो आ जाती है. कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का भी हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता. सो जब वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता तो फिर इसको कैसे ठीक करें. तो वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली रियलाइज कि वी नीड टू de-stress. We need to see what is worrying us, because you can have all those success factors defined in your life. You can have a nice bungalow, nice car, you can everything, but आपके peace of mind तो है ही नहीं. But क्यों नहीं है peace of mind? So people are running, somebody goes read some books, some people are running to these spiritual gurus, and that guru, and there is a billion-dollar industry around meditation and yoga and this and that. So many arts have been designed by American Reiki, past life regression, this and that. पता नहीं क्या क्या है, इतने सारे coaches, huge industries running. But do you think America has a lot of these people? But has it benefited America? It is going down and down. उसका खात्मा हो गया. West, despite having all these certified coaches, all these techniques, has it really benefited anyone? Actually, it is not benefited. It's fooling people, and people also want to go to where everybody is going. अगर कोई कोने में योगी बैठा हुआ हिमालय में, उसके पास कोई नहीं जाता. Who's really sincere in this effort? So the point is that very few people are actually really wanting to get the wisdom, back to the wisdom, and after getting the wisdom then we go into other areas of through philosophical research to find more truth about our own existence. वो तो एक next stage है, which our founders of theosophy, they did that, and their desire was that through theosophy we find thinkers who will actually explore this science. But most of us are actually stuck at mental peace level only. We have so many issues with mind clutter. So mind clutter ही नहीं जाएगा. हाँ जी. You just mentioned the foreign country like America, USA. That is correct. What I think is the purpose behind why they are not successful, why do not benefit to America as a society. Spiritual masters, gurus, teachers, without purpose is that they are professionals. What is the difference between the real guru and the professional in that? Yeah, so that's what I'm saying. Approach is professional to earn. They are basically commercialized it. Whenever there is a demand, why the ಏನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಐತೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ తెలుగు ಆಯ್ತು. सोमशेखर जी आप म्यूट कर देंगे? I can. Yeah. So the point is that when there is a opportunity in this Kaliyug, people make money out of it. There are 99.99% people are not interested in, or nor they have sorted out themselves. I went to Gangotri. Somebody asked me in one I give podcast interview. So just 2 days back, I think there was a podcast interview. That lady was asking me, "You met these yogis. Did you learn anything?" So then I remembered one thing just now, like Lalita Mataji I met. She's living in Gangotri. Is a very good yogi. She was a principal of a school in Swami Vivekanand School in Goa, in Assam. So she said one should go only to those who have actually experienced it, who have achieved that. उन्हीं से सीखना चाहिए. But हम लोग US में क्या है, वो सब बिजनेस बना दिया उन्होंने, और इंडिया में भी बिजनेस बन गया है. इंडिया में कौन सा नाम है, सारा स्पिरिचुअल गुरु जो ढोंगी गुरु है. अभी लोग इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं. लोग पूछते हैं कि ये इसके बारे में आप क्या बोलोगे. आई एम नॉट टेकिंग नेम, but like even if I take name like Acharya Rajneesh, people are having multiple opinions. So when there is a confusion, then there is something wrong.
without smoke, fire, or there's no smoke. So there must be something not convincing. So people start questioning कि ये रजनीश ठीक है कि नहीं. But nobody makes an attempt to find a real wisdom provider. अब उसकी तो कमी भी है, because हर चीज में तो आदमी पैसा ही देखता है. कोई लेक्चर भी ले रहा है वो भी पैसा चाहता है, कोई फेम चाह रहा है, वो खुद ही सॉर्टेड आउट नहीं है. तो हम एक कलयुग में ना तो कोई आपको सच्चा आदमी मिलेगा जो इसके साथ आप बैठ के वो कर सकते हो, ना खुद ही सच्चे हैं. लोग, लॉट ऑफ पीपल आस्क कि भैया हमें रियल योगी कहाँ मिलेगा, रियल गुरु कहाँ मिलेगा. तो तुम खुद ही रियल नहीं हो तो रियल गुरु कहाँ से मिलेगा? जब तक आप खुद ही प्रिपेयर नहीं करोगे, अपना एफर्ट नहीं बनाओगे, तो कहाँ से जाओगे? तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं. और हम हमारे लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कि सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे डील करें, वो ही हमें सीखना है. वहाँ यही माइंड कंट्रोल काम आता है. माइंड कंट्रोल क्या है कि हमारा मिसअलाइनमेंट, माल फंक्शनिंग कैसे हो गया वो समझना है. तो उसी पे हमारा एक्चुअली कोर डिस्कशन है. तो when we coming back to कि brain is processing all the signals coming from the sensory organs, and brain is also processing what is stored in the memory and also subconscious memory. Subconscious memory में क्या stored है वो तो मालूम नहीं होता, but subconscious memory लोग बोलते हैं कि past life का भी stored है, which we can't remember because we also forget what happened 20 years, 30 years, 40 years back. वो भी भूल जाते हैं. और ये जो रिलेशनशिप्स भी होती हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं हमारी. जो बचपन में हम कजन्स के साथ खेले, बहुत क्लोज होते हैं, आफ्टर व्हेन यू आर एंटरिंग 40 वो धीरे धीरे वो ब्रेक होने लगते हैं. आफ्टर 60 बहुत सारे ब्रेक हो जाते हैं. और हमसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको मालूम होगा कि हस्बैंड वाइफ की भी दूरी यही हो जाती है. यू आर एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्टिंग एज अ फॉर्मली मैरिड मैन एंड वुमेन, बट मेंटली आप धीरे धीरे दूर हो जाते हो, तो सबसे दूर हो जाते हो. तो ये भी एक बहुत दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू अंडरस्टैंड दैट वी एक्चुअली आर ऑल बाय आवरसेल्फ. कोई भी नहीं है हमारा. तो वैराग्य हमारे जो वानप्रस्थ आश्रम दिया था वो इसलिए दिया था कि 50 के बाद आप वैराग्य हो जाना चाहिए और वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए. बट वी आर स्टिल आवरसेल्फ स्टक इन दिस दलदल. इस दलदल में आदमी जूझ रहे हैं और हम इससे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि छोड़ना ही नहीं चाहते. तो ये सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे. छोड़ना क्यों नहीं चाहते, वाई आर वी पॉजिटिव, वाई आर वी और सो अटैच्ड, अटैचमेंट क्यों है, ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे. जब अब हम थॉट पे डिस्कशन करेंगे कि नेगेटिव थॉट क्यों बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, तो हम एक एक चीज डिस्कशन करेंगे. तो लाइक अगर हम अटैचमेंट पे डिस्कशन करें तो अटैचमेंट से ही थॉट्स आ रहे हैं. ये ऐसे 40-50 ह्यूमन क्वालिटीज हैं. मैंने पूरी अपनी बुक में सारी क्वालिटीज को लिस्ट किया है, और वो सारी क्वालिटीज पे ही हमें, उसी को साधना बोलते हैं. हमारी साधना ये है कि हम में क्या कमी है. हम पूरी दुनिया को तो बदल नहीं सकते, वी कांट चेंज द वर्ल्ड, बट वी कैन ओनली चेंज आवरसेल्फ. एंड हाउ टू चेंज आवरसेल्फ, दैट इज द ओनली मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस डिस्कशन. If any question is there, please let me know, or anybody has any comment to make. You Then said that the thoughts are originated hearts are. from the sun orbit. Said, no? Honey, I said that's the reason why the effect of energies of the sun energy due to its changing distance from Earth. The orbit change. हाँ. So that is the reason why the that affects the mind. अब उसमें जब हम सपोज हमारा ऑपरेटिंग रेंज है दिस, वी आर इन ऑपरेटिंग रेंज, वी आर ऑपरेटिंग प्रेजेंटली इन वन ऑफ द एक्सट्रीम. सतयुग में क्या है कि द एनर्जीज आर मोस्ट फेवरेबल टू द ह्यूमन existence on this planet. That time we are operating in the optimum range. But as the sun is changing distance, उसकी energy effects we go to the extremes. When we go to the extreme, उस time हम कैसे वापस लाएं. तो अगर आप देखो जो गाइडेड मिसाइल क्या होती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड मिसाइल बिकॉज दो आई हैव वर्कड इन गाइडेड मिसाइल. गाइडेड मिसाइल में क्या होता है, इनिशियल एक गाइडेंस सिस्टम होता है, फीडबैक लूप होता है. जब वो गलत जाता है तो उसको तुरंत कोर्स करेक्शन मिलता है. शिप का स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है, जायरो होता है. वो सब कैसे काम करता है, वो कंटिन्यूसली मैप होता है, वो सॉरी कंपास होता है. कंपास से वो देखता है ये गलत जा रहा है, शिप का नेविगेशन है. एयरक्राफ्ट का भी नेविगेशन है. नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करता है, जहाज जा रहा है, कंपास से वो रेफरेंस ले रहा है,
गलत गया तो कंपास बोलेगा इतना गलत चला गया, वो फीडबैक इंजन को जाता है, वो स्टीयरिंग करता है। तो वही वही हमें यूज करना है कि हम गलत जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, कंपास कहाँ है, ये कंपास को तो समझना है। और ये कंपास ही धर्म है। और धर्म कुछ नहीं है, ये ह्यूमन क्वालिटी है। धर्म कोई वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन को हमने एक आइडेंटिटी के रूप में ले लिया है कि हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम। इसलिए थियोसॉफी क्यों बोलता है, ये धर्म को साइड में रखो। धर्म कोई आइडेंटिटी नहीं है। धर्म, सारे धर्म एक हैं। और हमारा जो सनातन धर्म तो इसलिए बोलता है वासुदेव कुटुंबकम, उसको तो हम फॉलो ही नहीं करते। हमने इतना अपने को इतना पोलराइज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। कुछ भी चीज मिल जाए आदमी अपने को पोलराइज कर देता है। डिवीजन इज बिकम अ नेचुरल हैबिट कि डिवाइड कर दो अपने को। That's why called the religion divide, हाँ spirituality brings together. हाँ, सो रिलीजन भी एक बेसिस बन गया डिवीजन का। हर चीज कुछ भी ले लो आपकी, मैं कहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं ये बोलता हूँ, मैं वो बोलता हूँ, मैं ये खाता हूँ। कुछ भी चीज लो उस पर भी डिवीजन हो जाता है। पॉलिटिक्स पे हो जाता है, विचारों पे हो जाता है, खाने पे हो जाता है, कहाँ जा रहे हो उस पे हो जाता है, कहाँ पढ़े उस पे हो जाता है। मैं इस कॉलेज का हूँ, मैं स्कूल का हूँ, मैं वहां पढ़ा, मैं यहाँ पढ़ा। तो आप लाइक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक नेवी में मैं था, तो वहां पर उड़िया लोग मिल गए तो वो अलग हो गए, वो तमिल मिल गए वो अलग हो गए, उधर के मिल गए वो अलग हो गए, पंजाबी मिल गए वो अलग हो गए। ये डिवीजन क्यों करते हैं हम? डिस्क्रिमिनेशन नॉन, थियोसॉफी में तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ हम कर रहे हैं वो भी हमें देखना चाहिए। तो नाउ दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू थिंक अबाउट कि व्हाट आर वी डूइंग। इफ आई एम डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट विल हैपन? अब यहाँ इस पे विचार करना जरूरी है। वी नीड टू थिंक अबाउट कि इफ आई एम आई रियली डूइंग डिस्क्रिमिनेशन? आई एम कमिंग टू थियोसॉफी, but am I really following theosophy? Even the core values of theosophy. If you, even you think about the non-discrimination, which is one of the 3-4 core values of theosophy, uh, how much I am implementing in my life? Or if I am not implementing, then what is the impact it is having on me? We actually don't think about it. We come and listen and talk, but we don't walk the talk. तो वो सबके साथ है। कितना हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, किससे हम, किसी को भी हम देखते हैं सड़क पे, क्या हमारा रिएक्शन होता है? इज इट डिफरेंट और इज इट सेम? तो जो वननेस वाली बात है, वासुदेव कुटुंबकम वाली बात है, वो हम उसको रियली फॉलो करते हैं। We, lot of people talk Sanatan word is being now very frequently used, but how much people are Sanatani? How much they are following Vasudev Kutumbakam? अगर आप इतना से एग्जाम्पल ले लो, सड़क पे आपका रिएक्शन क्या है 10 लोगों को देख के? Sanatan ka meaning on in the public in India taken as a very orthodox. It's not like it is exactly opposite. Sanatan means you have to unify everything. Yes, yes. In the इसलिए तो वो वर्ड यूज हुआ वासुदेव कुटुंबकम। that is the reality. बट उसको हम कितना फॉलो कर रहे हैं वो? Public में it is the divided. तो अभी अब हमें देखना है कि अब इस डिस्कशन में हमें अपने को अपने पे फोकस रखना है बस। we are saying that, but now it is all about our own introspection. If I have mental clutter, if I am not able to deal with worldly problems, then it is for us to see where can I work on this. In our all the people are gathered here, we must be all tuned differently to discrimination. किसी का डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ये अपने को इंडिविजुअल को देखना है। इसमें किसी को ये इंडिविजुअल, ये आत्मचिंतन बोलते हैं हम लोग, साधना आत्मचिंतन है और कुछ नहीं है। आत्मचिंतन हमें करना, जितना हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, कम से कम दिन में 1 घंटा तो करो। आप 1 घंटा रोज आत्मचिंतन कर लो। सो देन बिफोर स्लीपिंग इफ यू कैन डू दैट आत्मचिंतन। एंड द कोर ऑफ थियोसॉफी इज ऑल्सो philosophy. What is philosophy? Atmachintan. So what is the core of science? Philosophy. Logical analyzing logically what to analyze. This is what we are trying to discuss. What to analyze? Because to analyze, to philosophize and use scientific also. Why science? Because science is logic. And logically analyzing something is philosophy. एंड हाउ टू डू, उसको हम हिंदी में आत्मचिंतन बोलते हैं, स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय क्या है? साधना है।
तो इसको कितना हम लोग कर रहे हैं, पहली चीज तो ये देख लीजिए कि अगर स्पेशली people like us who are now quite free from our, we have done our गृहस्थ आश्रम, तो अभी जो वानप्रस्थ आश्रम समझ के अगर आप रहो तो उसमें हम कितना स्वाध्याय कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। और अगर इसको हमने इसी पे कुछ टाइम चिंतन किया कि हमें आत्मचिंतन करना है, तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। और उसमें हमें अपने क्वालिटीज को व्यू करना है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो हमारे साथ हो रही है। उसी को एग्जाम्पल ले लो, कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, उसी को पकड़ लो और उसको देखो भाई ये क्यों परेशान कर रहा है, और उसको डिफरेंट क्वालिटीज में उसको इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई यहाँ मेरा क्या अटैचमेंट ज्यादा है। अब अटैचमेंट पे आ जाते हैं, चलो इसी पे अब डिस्कशन करते हैं। सो वील पिक अप वन क्वालिटी टू रियली अंडरस्टैंड what is attachment doing to us. It is really benefiting us or it is harming us. बेनिफिट कैसे? अब ये क्या होता है इसमें, जब हम जवाब देते हैं, इसको आप खुद इस पे भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, जो आपने जवाब दिया वो सच्चा है कि नहीं, इस पे भी इंट्रोस्पेक्शन करना है। क्योंकि अगर हमने दिमाग इस्तेमाल कर लिया तो फिर हम गलत जवाब दे देंगे। और हमने अगर दिमाग इंस्टेंट जो होता है ना, जो अंदर से आता है वो इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट को हम रोक के अपना, तो ये जो आत्मचिंतन है उसमें ये बहुत जरूरी है कि हम इंस्टेंट जो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अंदर जो कॉन्शियसनेस में हमारे जो जवाब बैठा हुआ है वो तो सच्चा है, पर जब दिमाग आ जाता है आगे, जब हम दिमाग का इस्तेमाल कर लिए, वो कंडीशनड है, तो दो जवाब आते हैं। एक हम बोलते हैं अंदर से जो जवाब आ रहा है, और एक हमारा जवाब होता है। इस पे भी अगर आपने जो सेल्फ क्वेश्चनिंग ठीक से नहीं करी तो फिर वो जो साधना है वो फेल हो जाएगी, इंट्रोस्पेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो उसको ट्रुथफुली कर रहे हैं, बिकॉज ये किसी को जवाब देने के लिए भी नहीं है। एक्चुअली ये जवाब लेना भी नहीं चाहिए हमें इस क्लास में भी। एक्चुअली ये जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि जवाब देने में जब खुद ही को जवाब दे रहे हो तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप सच्चा जवाब ले लोगे। बट जब हम भरी सभा में when we are too many people, we might give some different answer. But if you have to answer yourself, will you like to have a correct answer? Correct answer is there with everybody. That's why they say कि कोई गुरु की जरूरत नहीं होती, गुरु सबके अंदर बैठा है, कोई गुरु नहीं है। बट इसको पकड़ना, इस बात को पकड़ना, समझना, लाइक योग वशिष्ठ बुक में भी योग वशिष्ठ जी बोल रहे हैं रामचंद्र जी को कि आपका सिर्फ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मचिंतन, यही एक रास्ता है भव सागर पार करने का। देयर इज नो अदर वे, ही इज टोल्ड वेरी क्लियरली। तो बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, व्हाई डिफरेंट अदर टेक्निक्स आर यूज्ड, वो एक अलग डिस्कशन है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। वी विल गेट इनटू दैट डिस्कशन लेटर ऑन when you get some clarity, then answers will come on its own. क्लैरिटी तब आती है जब हम ये जितनी क्वालिटीज हैं इनको हम सप्रेस कर देते हैं, जो हमको अभी इम्पैक्ट कर रही है, उसको हम अगर सप्रेस कर दिए, ये चीजें समझ गए, तो हमारी रिकंडीशनिंग हो रही है। जो हमारे जो पैटर्न्स बने थे, जो एक ऑटोमेटिक होता है हमारा, कि हमारे को सपोज अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट हम पे कॉन्स्टेंटली असर कर रहा है, इट्स कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन अस। So all the processing which the brain is doing because of attachment will naturally happen. That's our nature. Why we call it nature? Because now it is naturally happening. हम क्या हैं? ये सोचो ना, हम क्या हैं? यही सोचो हम क्या हैं? हम ये जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या है हम मशीन ही तो हैं। बट हम अपने को मशीन कहाँ समझते? पहली बात तो ये सोचो कि हम अपने को मशीन क्यों नहीं समझते। हम कुछ स्पेशल है क्या? Are we something special in this universe? Is human something special? सबसे बड़ी तो यूनिक है, हाँ, स्पेशल नहीं पर यूनिक है। yeah, everybody is unique, but we are not above anybody else, and are we are also machine. अब यूनिक किस वे में यूनिक है ये समझना चाहिए। अगर यूनिक भी है तो क्यों यूनिक है? ऐसा क्या यूनिक है, इतना यूनिक है, बट वी आर नॉट एबल टू सॉर्ट आउट आवर ओन इश्यूज। एंड what is the advantage of this uniqueness also? So we think that we are better than animals, but this also may be wrong.
अगर अगर हम ईगो से सोचेंगे तो हम बोलेंगे ना वी आर बेटर देन एनिमल्स, बिकॉज यहाँ तो ईगो आ गई ना। कैसे बोल रहे हो आप? एनिमल्स के बारे में आपको अपने बारे में जानकारी नहीं, तो एनिमल के बारे में क्या जानकारी होगी? एनिमल का दिमाग, अपना ही दिमाग नहीं समझ पा रहे तो एनिमल का क्या समझेंगे? हम बोलते हैं ह्यूमन, मैं तो जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि हम बोलते हैं हम ज्यादा इवॉल्व हैं, जानवर से ज्यादा इवॉल्व हैं। कैसे बोल रहे हैं? क्या बेसिस है? क्या रैशनल है? आर वी रियली थिंकिंग रैशनली और वी आर ओनली अज्यूमिंग? सो हम जब बोल रहे हैं कि हम इसको ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे, तो पहले तो ये समझना जरूरी है, जब एक बेसिक क्वेश्चन होता है हु एम आई, इस पे भी हम चिंता नहीं करते। अपने को हु एम आई भी डिफाइन नहीं कर पाते। जब हम हु एम आई भी डिफाइन नहीं कर पा रहे, अपने को अगर मशीन बोलो तो भी अच्छा नहीं लगता। कितनों को अच्छा लगेगा मशीन? नहीं, मैं तो मशीन हूँ, कुछ नहीं हुआ, हम सब एक मशीन है। और भगवान ने क्या हमको अलग अलग बनाया है क्या? आर वी नॉट सेम? डोंट वी हैव सेम कैपेबिलिटीज इनबिल्ट? आर वी बेस्ड ऑन डिफरेंट डिजाइन? डू वी हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस? What is the true self of human? These are the questions we should ask. Then you start really getting aligned to the true answering, true questioning. And then only the thoughts can be, the introspection and the self-analysis will become more useful. Otherwise, if it is also impure, we will not reach there. So ये चीज को अगर हम गांठ बांध लें तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वील बी नॉट एबल टू मूव एंड देन we'll get into that questioning mode and argument mode and we'll not progress. So the most important part of self inquiry is that we should do it very sincerely, leave all the our conditioning aside, and when we do the, and why it is recommended to be done in close to nature, because the external influences which are constantly there, unknown to us, कि शोर मच रहा है, हॉर्न बज रहा है, तो वो भी परेशान कर रहा है ना। तो ये जितना जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो हमें छोड़ देता है और नेचर हमको हेल्प कर देता है टू डू रियल इंस्पेक्शन। हाँ जी, हाँ। When you are having yourself having the humbleness and unconditional Yes, quality, बिल्कुल। only then you can come to the. Yeah, so to know what Mr. Naidu was telling, that only if you have humbleness and unconditional qualities. Unconditional and humbleness. But before you even have humbleness, at least if you realize that we should be humble, then during introspection you will be humble, and that during that introspection we will be truthful and sincere and seeking answers from ourselves only. अब वो बोलते हैं वो दृष्टा ही दृश्य है, इसका मतलब क्या है? यही है सब अंदर ही है। आपका ये वर्ल्ड डिसॉल्व हो जाएगा अगर आप डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दोगे। सपोज डिस्क्रिमिनेशन पेड़ से, जानवर से, किसी से भी, और आपको ये एक्सटर्नल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस करना बंद कर देगा, तो ये वर्ल्ड डिसॉल्व हो जाता है। वर्ल्ड क्या है? ये जो इसको वर्ल्ड इज इल्यूजन, द मीनिंग इज वर्ल्ड इज इल्यूजन मीन्स whatever I am thinking in my mind, that is my world, and that is only acting on us. भाई कोई इंसान है, वो हमें परेशान कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। अब उसकी वजह हम समझेंगे, बट अब वो हमारा वर्ल्ड बन गया। सुबह शाम हमारे दिमाग में वही चल रहा है, तो वो हमारा दुनिया हो गई। अब कोई किसी के दिमाग में ट्रम्प चल रहा है, तो उसके दिमाग में ट्रम्प भी दुनिया में आ गया। तो द वर्ल्ड इज मेड ऑफ फ्यू पीपल, फ्यू ऑब्जेक्ट्स, बस। और क्या? फ्यू ऑब्जेक्ट्स, material objects, commodities, and we have commoditized even humans. हम भी अपने को commoditize कर दिए हैं। औरत भी commoditized है, औरत के लिए आदमी commoditized है, एक commodity बन गए हम। So क्यों हो गया ये? अब जब हम human qualities में जाएंगे तब हमें ये चीजें समझ में आएंगी। तो ये this introspection is very very important, and to do it very sincerely in a very humble way within our own self. इसमें संगत में बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली कोई क्लास की जरूरत नहीं है। इफ वी कैन ट्रिगर आवर क्वेश्चनिंग, राइट क्वेश्चनिंग एबिलिटी एंड राइट, दिस इज ऑल अंदर ही है। टीवी भी अंदर है, गुरु भी अंदर है,
पूछने वाला भी अंदर ही है और कहीं नहीं है। तो ये जब सब डिसॉल्व हो जाएगा तो वो सब सारी खिड़कियां खुल जाएंगी और फिर Unconditional humbleness, cooperation. You have to cooperate during. with your own self. You have to cooperate with your own self. Naidu ji is telling cooperation is also needed. So cooperation with whom? Your own self. किसी से cooperate नहीं करना, किसी के साथ ना बैठना, कोई संगत करनी, कुछ नहीं करनी. So when you really, and now I'm coming to that nature. Why yogis go to Himalaya? You can do it here also, but I have also traveled to Himalayas for the last 10 years. I've been traveling. I've stayed last year for 3 months in the forest, trying to living like a yogi. I went this year also, stayed near Narmada, then went to Teddy Gadwal, this Buda Kedar, near Buda Kedar. ऊपर एक महात्मा रहते हैं 2400 मीटर हाइट पे, मैं उनके साथ वहां रहने गया था. वहां पर क्या होता है, नेचुरली आपका ये पूरा दुनिया गायब हो जाती है. इट्स वेरी इजी. तो ये ट्रेडिशन चला आ रहा था, लोग हिमालय में जाते थे. अभी मैं जब पॉडकास्ट इंटरव्यू देता हूँ तो सारे लोग यही पूछते हैं हिमालयन योगी के बारे में, क्योंकि उनको भी लगता है हिमालयन योगी क्या स्पेशल चीज है. वो तो एक कुछ तो है ना, वहां क्यों जाता है. आप गंगोत्री के आगे जाओ, गौमुख के रास्ते में ऐसा डिवाइन साइलेंस है. ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं. लास्ट ईयर में देवप्रयाग में रहा था, वहां पर ऊपर जाओ, डिवाइन साइलेंस है. उस डिवाइन साइलेंस में आपका ये सब कचरा धीरे धीरे निकल जाता है एंड योर माइंड प्योरिफिकेशन हैपेंस. जैसे हम भजन सुनो, आप तो रात को भजन सुनो. अब भजन सुनने का 2 तरीका होता है, कोई सुनता है और कोई भाव से सुनता है. कोई भजन सुन रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है शब्द क्या बोल रहा है. और कोई भजन सुन रहा है, वो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ भजन सुन रहा है, फिर वो उस भजन को 4 घंटे भी सुन सकता है नॉन स्टॉप. अब वो आइडियल टाइम उसका है सोने से पहले. यू आर स्लीपिंग एट 9 or 10 o'clock, 11 बजे 12 बजे तक सुन लो. बट अगर उसमें आपको प्योरीफाई नहीं कर रहा, आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है, तो फिर बेकार है. तो somebody asked, उस दिन वो मेजर शर्मा पूछ रहे थे, कृष्णमूर्ति जी ने बोला मंत्रा चैंटिंग बेकार है, डल कर देती है. उसका एक मीनिंग था. अगर आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो, सी व्हेन somebody, some wise person says something, how somebody interprets, that is the problem. Interpretation is not done correctly because you are interpreting as per your wisdom. He spoken as per his wisdom, and the person, different people are interpreting differently. This is the problem. So if it can be conveyed, so it's very important for the teacher also to understand कि सामने वाला समझेगा क्या. वो उसको कई बार teacher should realize that what he is told has not been conveyed properly, then he should clarify. Otherwise some people will go with a different interpretation and उसको फिर बोलेंगे मंत्रा चैंटिंग बेकार है. बट मंत्रा चैंटिंग अच्छी है और नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मंत्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करता. जो भजन सुनना है, भजन गाना है, किसी को गाना पसंद है तो वो गाने में एंजॉय करता है, किसी को सुनना पसंद है वो सुनने में एंजॉय करता है. मेरे को सुनना पसंद है, मैं सुनने में एंजॉय करता हूँ, मैं गाता ही नहीं. मेरे को आप आई प्ले भजन ऑन कीबोर्ड, मेरे को उसमें मजा आता है, बिकॉज म्यूजिक सुनने में मजा आता है, किसी को बजाने में मजा आता है. तो इट्स ऑल अप टू यू व्हाट इज बेनिफिटिंग यू. एक डॉक्टर बोलता है तो ये डाइजीन खा ले, बोले नहीं तो मैं वो वो ये वाला ही ले लेता हूँ, एंटासिड दूसरी ले लेता हूँ. तो किसको किससे फायदा मिलेगा. डॉक्टर भी पूछता है ना, किसी से एलर्जी है क्या. तो किसी से हमें अगर एलर्जी है, कोई हमें बेनिफिट नहीं कर रहा, वी शुड ओनली पिक अप दैट. सो नाउ विल डिस्कस. सो वन इज दैट अटैचमेंट बेनिफिट करता है नहीं करता, ये सोचने की बात है. इनफैक्ट मेरे को आई शुड नॉट बी इवन आस्किंग, अगर पर आपको लगता है तो वी कैन हैव अ डिस्कशन. अटैचमेंट आप सोचो कि कब बेनिफिट करता है. वैसे एक्चुअली एक तरह से आंसर राइट भी है, ये सारी चीजें बेनिफिट भी करेंगी, बट कब बेनिफिट करेंगे ये सोचने की बात है. व्हेन विल अटैचमेंट बेनिफिट? whenever your expectation is met. Attachment when the baby is born. Baby is born. Whether the animal or human being or He is attached to the mother. Why? Essential because the mother. But why is attached? He has to get protection from. But why is he attached? Tell me. Depends. Corruption. Because he's that time he has no impurity. He doesn't have any. He doesn't. He's innocent. हाँ, so अब ये बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि are we all innocent or not? चलो इसको दूसरे तरह से देखते हैं. Do we have that childlike innocence or not? Or we are thinking every time something. Child क्या वो करेगा? Child, इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर देवप्रयाग में मिडिल स्कूल में गया क्लास लेने, ऐसे ही जनरल टॉक के लिए, and I thought they will not really understand spirituality. And then I went to high school
And I was actually wondering, will children understand this or not? But frankly, if we all go to one middle school, you will be shocked that they are better than us, frankly. The middle school children are so soft like a sponge. And so that impurity has not gone them in totally. They are in the stage of formative years. So they still think purely and they resonate with these things much easily, very easy. In fact, they were so happy with my talk, even in the high school, that they wanted me to come every day. Principal was reluctant, but the students wanted that I should come every day and teach them. So they are so beautiful, like pure. आप बच्चे के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो उसमें ज्यादा मजा आता है बड़े के साथ आता है बच्चा इज इंस्टेंट ना स्पॉन्टेनियस होता है हम कितना स्पॉन्टेनियस है तो innocence is directly proportional to spontaneity and spontaneity is directly proportional to your inner connectedness and purity. But when we are constantly governed by impurities, which are the negative tendencies, then obviously our every act is unnatural. Now, what is natural? What is unnatural? Another way of looking at it, what is natural and what is unnatural in our behavior? Are we behaving naturally? यही आप सवाल पूछो हम कितना नेचुरल बिहेव कर रहे हैं और कितना आर्टिफिशियल है अननेचुरल मतलब आर्टिफिशियल मतलब इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी मतलब कंडीशन मतलब नेगेटिव ह्यूमन टेंडेंसीज एक्सपेक्टेशन से भरे हुए हैं फियर है ईगो है इग्नोरेंस है तो और आप ये बताओ कि कितने परसेंटेज हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर actually dumb or foolish. We also must be. Everybody is full. Only what is degree of foolishness? So, if we really see, very nicely said by Mr. Vinayak, that everybody is a fool to some extent. And there is a very nicely said. And if you really see what is the percentage of people, I'm asking it a little differently, and you have answered it in a different way, but answer is almost same. But if you really don't have to answer, but if you see what is the percentage of people who are fools? If all of you write down here, and you know, if I suppose see who has written what, answer will be almost same. And we know this fact, but we think otherwise. We all are actually conditioned to be in a larger category. ये सब realizations की जरूरत है कि we need to realize that we are actually conditioned wrongly. Why we are conditioned wrongly? उसको trace back करो कि चलो कलयुग है. Ultimately हर चीज का कोई reason तो होता है ना. What is the reason behind everything? Why are we acting? And but that reason doesn't justify. Most of the time we are looking for a reason to justify our wrongdoings. But तो एक एबिलिटी मिली है कि फीडबैक देके करेक्शन लेके उसको ठीक कर लो बट वो तभी होगा व्हेन वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग एंड हाउ मच ऑफ दिस इंट्रोस्पेक्शन वी डू दिस आल्सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हाउ मच वी आर ट्राइंग टू फाइंड फ्लॉज इन आवर ओन सेल्फ हम कितना अशुद्धियों से भरे हैं वो उस पर हम कितना काम कर रहे हैं वो समझना जरूरी है बाकी ये सब क्लास वास सब फालतू है अगर आप हाँ सत्संग जरूरी है अगर आप सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर दो द पर्पस ऑफ इवन थियोसॉफी इज दैट वी शुड बी थिंकर्स एंड वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स प्योरिफाइंग विजडम स्कूल ऑफ विजडम क्यों है स्कूल ऑफ विजडम है कि विजडम दे बट हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर विजडम आर वी रियली अलाइंड टू द डायरेक्शन which has been set in by the founders. So are we really becoming thinkers? And then if you really become thinkers, if you are seriously getting into introspection, then this discussion will become very interesting. Then it will be a proper satsang. And that satsang is called like one of the food for the body. Satsang, Seva, Sankirtan. If you go to Gurudwara, Satsang, Seva, Sankirtan. तीनों चीज करते हैं. Sankirtan is for purification through devotion. Devotion से आता है trust, which is missing in the world today. और सत्संग से आता है विजडम बट एक जना ही सभी को सत्संग विजडम एक साथ एफर्ट करना है तो ही सत्संग होगा वरना तो खाली वन वे ट्रैफिक ही चलता रहेगा तो सुन के अगर चले गए और हमने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया तो फिर वो सत्संग का फायदा नहीं है तो
इस पे अगर आगे बढ़ना है तो somebody has to start also speaking. The idea of School of Wisdom is that everybody works towards getting the wisdom, and we don't remain listeners. So the whole idea of too many people giving lecture is also actually not good. So now coming back to attachment, अब आप अगर कोई बोल सकता है कि attachment में क्या फायदा है या फायदा नहीं है, जो भी है, अपना अपना व्यूज दीजिए, ये सब तो अच्छा है। मैंने आपको बोला कि अटैचमेंट बिटवीन मदर एंड बेबी, वो तो खैर प्योर है, अटैचमेंट हम अपने अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट परमानेंट। In case of this relation is a permanent. नहीं, आप let's talk about our own self. Let's not give any examples now. Let's talk about our own thinking, about our own self. कि attachment, what do you think? Now we are not a child, so let's not talk about child, but we can always take reference with a child. Idea. हाँ, There is that attachment remains permanently. When the baby is very small, a baby is a very adult, he becomes that attachment there. But only the physically it will not show. Mother as he is the boy, baby. But into some friends, when there is a professional commercial relations, the attachment will not be there with the two friends in the college or the school. Not necessarily that they will continue the same attachment after 20 years. It will be changed depending upon the what is their relations. So relation is about the ego. yeah. So I will also try to amplify this. What happens is in attachment, like I have written my book in which I have written process of thoughts, scientifically how it is getting originated. Second, there are 4 parts in the book. I have actually structured it very nicely. Second is these human qualities. I have listed down all the human qualities, explaining each quality to really understand how it is impacting us. Then third is roles and responsibility. Now this is karma. अब हमारा जो जितने स्क्रिप्चर भी हैं, उपनिषद हैं, गीता है, वो सब कर्म धर्म पे ही बात चल रहा है और कुछ नहीं है ना। कर्म इज द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एंड धर्म इज द फाउंडेशन, द रेफरेंस, यही है। इसको इस तरह बोलो साइंटिफिकली, या आप इसको रिलीजियसली बोल दो, उसको रिलीजियस टोन दे दो कि वो उपनिषद है, धर्म और कर्म है, और कुछ नहीं है ना। तो जो कर्म क्या है, कर्म को हमारे को समझना जरूरी है। कर्म इज आर गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जैसे माँ है और बच्चा है, बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जब पैदा हुआ है, उस टाइम उसका अटैचमेंट जस्टिफाइड है, वो प्योरिफाइड है, उसकी नीड है, वो रोता है, दूध पीना है तो उसको रोना ही रोना है, नहीं मिलेगा तो रोएगा, अनकंडीशनल डिमांड है, वो उसकी नीड है। और मदर को फुलफिल करनी है तो वो और किसी और को थोड़ी रोएगा, वो मदर को ही रोएगा ना। तो वहां से निकल के आया तो मदर से पहले किसको देखा, उसने निकलते ही मदर को देखा, तो उसने उसका संसार मदर ही हो गई ना। इसलिए तो भगवान भी मदर, सब कुछ मदर ही है, वही सब कुछ देने वाली है। 3 महीने तक तो बाप भी हैंडल करने में डरता है। मेरी बेटी जब 3 महीने की थी तब तक मैं डरता था, क्योंकि भाई डेलीकेट होता है बच्चा, तो बच्चे को भी मालूम है भाई माँ के पास ही, माँ की गोद में उसको शांति है। तो भगवान ने एक नेचुरली स्त्री क्यों बनाई है, एक क्यों नहीं बनाया, स्त्री क्यों बनाई है? स्त्री को भी तो कुछ, स्त्री का फर्क क्या है और पुरुष का फर्क क्या है? पुरुष प्रोवाइडर है, स्त्री के वो केयर। तो ये एक इनबिल्ट क्वालिटी बना दी ना भगवान ने, कुछ कुछ इनबिल्ट फीचर दे दिए ना, स्त्री को अलग कर दिया ना। और उसी लिए हमारा पूरा सामाजिक संस्था जो पूरा ये बना, वो इसी बेसिस पे बना ना कि वुमेन बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेट्स विल डू दिस एंड मैन बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेट्स विल डू दिस। अभी सामने 15 किलो का वजन पड़ा था, अब औरत को बोले उठाने के लिए, आप खुद उठाओगे, कौन आगे बढ़ेगा? तो व्हाई दिस इज इंस्टेंटेनियस, नो स्पॉन्टेनियस। सो ये कर्म हमारा चेंज होता रहता है, रोल्स हमारे चेंज होते रहते हैं, और उस हिसाब से हमारा अटैचमेंट डिटैचमेंट भी चेंज होता रहता है। अब अटैचमेंट किसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो एक समझना जरूरी है। तो अटैचमेंट और कर्तव्य जो कर्म है उसको समझना जरूरी है कि हमें कर्तव्य करना है या अटैचमेंट होना है। अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशन होना है। अगर ये दोनों अगर हुआ और हमने कर्म पे फोकस नहीं किया, तो हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? अटैचमेंट पे, पॉजिटिवनेस पे, कंट्रोलिंग पे और एक्सपेक्टेशन पे। और उसके बाद तो फिर कहानी चलती रहती है आगे, बिकॉज दीज ट्रेट्स विल ट्रिगर मल्टीपल नेगेटिव ट्रेट्स, अल्टीमेटली हेट्रेड, एंजाइटी, एंगर, depression and mental turbulence, which is now one negative quality leading to multiple negative quality. So कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है, कर्तव्यनिष्ठ।
निष्काम भाव से कर्म करना, यही हमारा एक एसेंस है ना। हाँ जी। Security is a problem. Security. Security, Security comes into play. What we but because of fear. But why? Because there is expectation. Why there is expectation? So now when you actually listen to each quality, understand each quality, you will realize that should we be living in future? When we live in future, why we live in future? We have expectation. Why we have expectation? Should we have expectation? What is expectation doing to us? Expectation क्या कर रहा है हमको? हमारे पास 90% थॉट्स एक्सपेक्टेशंस ही आ रहे हैं कि मेरे वाइफ ने ये नहीं किया, मेरी बेटी ने नहीं किया, मेरे बेटे ने वो नहीं किया, मेरे फादर ने ये नहीं किया, मेरे सन इन लॉ ने ये नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने वो more daughter. insecurity is being experienced by everyone. Why? It is who's responsible for this? First of all, who's responsible for our expectation? But do we really realize this? Do we really try to do introspection on this? On expectation से क्या हो रहा है? Like now, due to whatever thinking we are having, इससे कोई दुनिया बदल रही है? Is the world changing? Will the world change, or is the world changing by your worries? No. What can change? World will never change. People who are working in a certain way will not change. And योग वशिष्ठ जी बोलते हैं रामचंद्र जी को, आप एक उदाहरण बन सकते हो. You can be an inspiration by your conduct, isn't it? We idolize people, but today we are idolizing film actors. वो idolize कर रहे हैं, politicians को idolize कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को idolize कर रहे हैं. जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके आगे झुकते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसके आगे नहीं झुकते. जिसके पास पैसा है, कौन क्या कपड़े पहना है, उससे झुकते हैं हम. तो ये क्या है? आर्टिफिशियलिटी है कि नहीं? तो अगर हम इतनी सारी आर्टिफिशियलिटी कैरी कर रहे हैं, इम्प्योरिटी कैरी कर रहे हैं, तो कहाँ से खुश रहेंगे? अब जिसके आगे झुक रहे हैं हम उसके जैसे ही बनना चाहते हैं. लोग तो उसको जस्टिफाई करते हैं, ऑप्युलेंट लिविंग को जस्टिफाई कर रहे हैं लोग. नहीं, उसके पास है वो तो करेगा खर्च. तो शुड द सोसाइटी बी इम्बैलेंस्ड? व्हाट इज सोशलिज्म? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज ऑटोक्रेसी? व्हाट इज कम्युनिज्म? ये भी एक, इसको भी कोई लोग समझे भी है ठीक से. Can you be happy when everybody else around you is unhappy? Can you really be happy if you really think कि कोई बहुत सेठ आदमी है, उसके चारों ओर तो गंद है, अभी आप सड़क पे जाते हो, आपके पास अच्छी सी गाड़ी है, बट सारे लोग तो ऐसे चला रहे, तो कैन यू रियली एंजॉय ड्राइविंग? You cannot enjoy driving, no? This is a small example. So can you really be happy if people around you are not happy? If your family, everybody is not happy, and you think you will be happy? Because their happiness is going to influence you. Because they are constantly transacting with you. If an unhappy human is transacting with you, what will happen to you? So shouldn't you be non-reactive? आप क्यों react कर रहे हो उस केस से? So आप क्या कर सकते हो उनकी अनहैप्पीनेस मिटाने के लिए? वो कर सकते हो, वो आपके उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा है क्या? अभी कोई निकम्मे को हेल्प करना है, somebody who's lazy, if you think by helping him you will do some सेवा, that cannot happen. In this theosophy service of service, when this service जो होती है उसमें आप किसकी सेवा करने जा रहे हो वो भी बहुत जरूरी है. You can help somebody who is willing to be helped or willing to make an effort. अभी एक निकम्मे को जाके हेल्प करोगे तो वो तो सेवा नहीं है, वो तो और उसको निकम्मा बना देगी. तो ये भी समझना बहुत जरूरी है. धर्म संकट यही है. इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड टू क्लियर धर्म संकट. धर्म संकट क्या है? We are unable to take a decision what is right and wrong. Discriminatory ability is not correct. We are not able to solve this jigsaw puzzle. It's a jigsaw puzzle. कि उसको सेवा करनी है, अब सेवा करनी है समझ के पहुंच गए सेवा करने, किसकी सेवा करनी पता नहीं, तो सेवा कर ली. सो सेवा किसकी करनी ये भी समझना जरूरी है. अगर कोई किसी को पढ़ा रहा है, वो किसको पढ़ा रहा है ये भी तो, अरे किसी को क्या पढ़ाएगा? अभी यहाँ पर हम क्यों बैठे हैं? There is a mutual understanding which is there. There is a mutual agreement. Yes, there is a convergence in what we are discussing here, and there is going to be a benefit, our own personal benefit. This personal, whatever we do, what personal benefit here, selfishness is needed, because the
Aim is very right. Aim is aligned to the universe. Universe has designed us to form in a certain way. वो सबसे ज्यादा कोर मोटिव है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि हमारा जो यूनिवर्स ने हमें जिसके लिए यहाँ भेजा है वो हम कर रहे हैं कि नहीं. ये भी एक टॉपिक इंट्रोस्पेक्शन कि आप कर क्या रहे हो. बहुत डीप है ये एक्चुअली. ये शुरुआत में तो बहुत ही डीप है. हमारी कितनी फैकल्टीज हैं जो कहाँ फैल गई हैं. वी हैव गॉन scattered our thoughts and actions endlessly in so many directions that we just don't know कहाँ से शुरू करें, where to start. But the whole beauty of this Swadhyay and Atmachintan is that you can start from anywhere, and when you start, then it leads to फिर पूरा समेट लेते हैं. We are able to collect and the entire dust and clean it, collect it, throw in the dustbin, and then ensure we close the windows so that dust doesn't come in. और उसी को बोलते हैं कि अब अंदर चले गए. एंड उसके बाद डोंट गेट, बिकॉज माया, इफ यू रियली नेक्स्ट कम्स माया आफ्टर डूइंग ऑल द इंस्पेक्शन. माया इज द इंटेंसिटी ऑफ माया सो स्ट्रॉन्ग, it throws the problem in different angle. So law of karma, that's another big topic actually, law of karma. And first we have to see what is leading to karma, what type of karma, and then later on we will discuss law of karma, and that will really make you understand the redemptions of karma which we are doing, and even thoughts, what bad thoughts we are having, what kind of different thoughts are there. Each thought is made of all the qualities. Whether in that thought there was a jealousy, whether you had in that thought expectation, whether in that thought you had ego, whether in that thought were you compassionate or not, non-compassionate, were you non-caring in that thought. All these elements, ingredients of human quality are there in every thought. And thought leads to action, may not lead to action, but thought is a signal. Thought is like a command, and it's a force. So when we come to the science, thought is a force. It's the energy. Energy is force, and it is the output of the input signal which is coming to the brain, and that output is now an input to anything which is there, including your own body. That thought will give a command to some organ when it is not needed, and when that thought will act on your body. Obviously, when a unwanted force is acting on your body, now I don't have to explain that. And it can also act on others who are reacting to that. Suppose your thought is converted into a vocal voice, किसी पे आप चिल्ला दिए, उसका असर आप पे भी पड़ता है. आपका बीपी हाई हो जाता है. आप ज्यादा चिल्लाओगे तो बीपी हाई हो जाएगा, because that command is acting, that force is acting on yourself, and somebody who is not ignored that, has reacted to that, it is acting on, that energy is also acting on them. So that energy get distributed. And जैसे बोलते हैं कि आप उसको बोलने दो, don't react, तो वो सारा एनर्जी उसी पे आएगा. That whole force is deflected by all other objects, and it will go and act on that person. वो reflect होके उधर ही जाएगा. Because these are all, if you see scientifically, a thought is a force of energy, nothing else. Why we are a machine? There is a constant energy transformation which is happening, and this is basically the law of conservation of energy, nothing else. The universe is just a bundle of energy, and through these atoms, subatomic particles which are there in the space or in the form which we can see, or even the forms which we cannot see, we call formless. There's a constant movement of energy which is happening from source in a cyclic way and getting, it's just getting transformed into different forms. So when we create some thought, it is a force of energy, and that force is acting on us. So if you really want to think scientifically, then we can have another discussion later, but I am just touching upon this point. So if you really see how many expectations, how are the expectations, what all expectations we are having, why are we having those expectations, why are we not focused on our responsibilities? Should you focus on your responsibility, or should you focus on the outcome?
outcome is leading to expectation. We should have intention or we should have expectation. आप यहाँ कर्तव्य करने आए हो या दूसरे की दलाली करने आए हो? आप हम दलाली कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। आप अपना काम करो, सो जाओ, इतना काम करो कि थक के सो जाओ, इतना काम करो कि आपको अच्छी नींद आ जाए। नींद नहीं आएगी अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। काम तो कर रहे हो, दिमाग कहीं और है, माइंड इज एल्सवेयर, कंटिन्यूसली एक्सपेक्टिंग दैट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी fulfilled, benefited, A, B, C, D, they should do X, Y, Z for me. If you are having expectation, then you are gone. Because others' karma are their karma. For their karma, they will be redeemed. For our karma, we will be redeemed. We should not be worried about others' karma. Should we be worried about others' karma or not? ये तो बहुत जरूरी है समझना। How best we can dilute and neutralize the negative? सो इसको अब जैसे यही है, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, हाँ, देयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट ही हैज टू एंश्योर डिसिप्लिन। सो ये एक जिक्सॉ पजल है, इसको इतना स्ट्रेट मत समझना। मैनेजर को कुछ फोर्स भी करना पड़ता है, उसको थोड़ी एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको एक टारगेट मीट करना है कंपनी में। हमारे यहाँ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोला गया? उन्हें एक मर्यादा बनाई, ये मर्यादा में रहो। तो उसका भी एक लॉ था घर पे। और आजकल घर में कितना लॉ चलता है, लॉ क्या है किसी को मालूम है क्या? आजकल की जनरेशन बोलती नहीं तो आप पुराने विचार के हो, तो वो तो लॉ फॉलो ही नहीं करते। उनका क्या हाल होगा? वो तो पागल हो जाएंगे। हम भी पागल हो चुके, तो वो कितने पागल होंगे सोच लो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, हम किस डायरेक्शन में आ गए, हमारे पुरखे किस डायरेक्शन में थे, वो कितने, वो तो दे हैव गॉन थ्रू इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929, दे हैव गॉन थ्रू वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, पीपल हैव गॉन थ्रू इंडो पाक वॉर, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। तो वी फील, वो लोग पहले लोग स्पिरिचुअल ज्यादा होते थे, बिकॉज दे हैव सीन सो मच, वी कांट इवन इमेजिन। हॉलोकास्ट हुए, ज्यूइश हॉलोकास्ट, जर्मनी का वो हुआ, यूरोप ने 2 वॉर देखे, हमने क्या देखा है? एक्चुअली इन यूरोप पीपल हैव सीन मोर प्रॉब्लम्स, दे आर अंडरगोइंग मैसिव मेंटल प्रॉब्लम्स कंपेयर टू अस, यू हैव नो आइडिया। उनके तो रिलेशनशिप एक नहीं कई खराब हो गए। तो एक रिलेशनशिप खराब होने पे जो हालत होती है वो तो हमें भी नहीं मालूम है बहुत से लोगों को, और जहाँ कई रिलेशनशिप खराब हो जाती है तो उस आदमी की क्या हालत होती है वो मैं देखा हूँ। वहां पर मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच इन यूरोप, आई नो व्हाट कंडीशन दे आर इन। दे ड्रेस वेरी वेल, प्रेजेंटेशन इज एक्सीलेंट ओवर देयर, एंड दे से दे यूज्ड टू टेल मी वी आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ये उनके खुद के कमेंट होते थे, बिकॉज आई वाज अ टीचर, सो वन वे दे वर वेरी ओपन, दे हैड नो इनिबिशन, दे यूज्ड टू just straight away tell we are hollow. One lady told me we think we are successful when she came to India, and she saw how harmonious relatively we are to them. Still, she said we call ourselves success, we are failures. So उनका तो जो हाल है वो तो पता नहीं, और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमारा जो 10-20 साल में वो हाल होने वाला है वही। अभी why there are more Western seekers in India? If you go to Rishikesh, you'll find more Western seekers. हम लोग सिर्फ मंदिर में जाके आ जाते हैं। Western seekers are now, because उनकी तो they have been like hit against the wall. उनकी तो बहुत बड़ी हालत है, उनके यहाँ तो फैमिलीज है ही नहीं, पूरा ही ब्रेक डाउन हो चुका है उनका सोसाइटी का। 80% डाइवोर्स रेट, 75% डाइवोर्स रेट, दैट इज अ डेटा इन डिफरेंट कंट्रीज, ऑल सिंगल। तो बुरा हाल है। तो you think if should we also be heading there? We are actually heading there, but how do we put a stop? So हमारी तो लाइफ निकल गई, हम अपने बच्चों को कहाँ ये how do we give this wisdom to the children? How do we bring them on track? This is very important. I think this, at 50, 40, 60, the core responsibility for us should be that the next generation is get sorted out somehow. But how do we do that? That is a problem. बहुत मुश्किल है।
सो अब ये कलयुग का भी अंत होना है ना, तो अंत होने के लिए भी ये सब महाभारत क्यों हुई? महाभारत में क्या हुआ? इफ यू हम लोग वी लिसन टू महाभारत एज अ स्टोरी, कि वो कर्ण, पूरी महाभारत भगवत गीता इसी पे लिखी गई ना। अर्जुन डिडंट वांट टू किल हिज अंकल ना। आपको कोई सोचो कभी किसी अंकल को मारना हो? अभी अभी ये अतुल सुभाष वाला केस हुआ, तो लोग बोल रहे हैं अभी कितना, 5 दिन से 6 दिन से वो केस ही डिस्कशन में चल रहा है। सो कितना सोसाइटी कहाँ जा रही है? आप किस किस को मार सकते हो, क्या कर सकते हो? अभी even now if you see, many children are not getting married in India also. Boys not finding girls, girls not finding boys, and with these kind of cases which are happening now, people have got the scare. Ki what kind of girl will come in my house, what kind of boy will come in my house? Boys worried now. So why politicians are doing this? That's another story. There's another topic for discussion, not to be discussed here. So now coming back to our own self finally, because if we can transform, we can bring that change in the society. How you can set an example by bringing that change. So the change begins with ourselves, and if we cannot do that, then we can't change anybody else. Like both the charity begins at home, but here the charity is our own charity. We can do charity if we are, if we ourselves are capable of doing charity. If we can't be, if we are not capable, how will we do a charity? So एक्सपेक्टेशन से आप इस पे डिस्कशन करना है कि एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, आप सोचो. So I leave the forum open for discussion. Anybody online wants to say anything on expectation? The thoughts? आप सब म्यूट पे हैं. If anybody wants to speak, they can unmute and speak. And the seriousness to really, this is the biggest barrier, the seriousness to transform. Like Naidu ji said, humbleness is very, very needed. Seriousness to transform. If that seriousness is not there, like why a yogi goes to Himalaya? Why can't we go to Himalaya? I am trying. Chandrasekhar ji, you want to say something? Yeah, I was just wondering, Ji. do you have a presentation on this particular topic, or We are actually having a discussion presentation because I understand we are having a discussion. Yeah. Wondering whether you have a I have That's a okay. book. I have a book actually, but the problem is if I make presentation, then there will be a lot of presentation which will be there. I can actually make presentation also, not a issue. I can. no. I'm just asking. The reason why I'm asking this question is Ji. that as you keep on speaking, there are a lot of thoughts being generated. Yeah. So it is likely that we may lose focus. At Uh-huh. least I would lose focus on whatever is being discussed. I can understand. So that is the reason why I asked. It doesn't mean that you have to make a presentation. Please. I'm just asking if there is something ready, then fine. No, this is a good. Making a presentation, I can make. That's not a big deal. And then we can be actually also it will help us in keeping track, being on the track, because the discussion goes into different direction. But sometimes discussion also need to go into different direction, because then it was very natural discussion. But if we make a presentation, we will probably keep focusing on that we are not digressing, and digression is actually also needed. If you really see, if you are actually offline discussion has a different intensity and effect than online, and in online mode presentation will help. So what I can do, this is a good point actually. I will think I can get few slides. Why don't you just give me the name of the book, so that what I will do is I will purchase it, so that I'll be having a cross reference available. Yeah, that will be wonderful. My book is in fact madam ke paas meri book already hai. She has taken it. I can show my book here. It is there with Rashida? Meditation and Spirituality, a Philosophy. Okay.
So if you want to buy it, you can buy from here or here only. Okay, I have one I copy, will do that. or you can buy from Amazon also. Yeah. So this book is actually why I wrote this book is because this is a very structured way of information. So somebody reads this book, it will really help, and then having a discussion will be more beneficial. And I will also think I will share a presentation on WhatsApp rather than sharing in the class. I will share a few slides every Friday or any day in the week. I will share. I'll make few slides and I will share with everyone so that that becomes the basis of discussion. And a very good point, Kaleji. Thanks a lot for that. Yeah, I have to make a statement. Ji. I am on another, typically I am on another conference from 8:45 to 10:45. Ji. So I joined late. Okay. So it's a very selfish type of view that if there is a presentation, then it makes life easy for me. Correct. I will do that. I will do that. Yeah, that Anything. disclaimer I must make. No, this is a very fair ask, and it's whatever people want, I am there to do it. Like there is no inhibition. Whatever people want, they should just मतलब खुले दिल से पूछ लें या कोई इसमें there's no formality because the whole idea is very pure. So there is no my effort should be wholehearted also, and people also should wholeheartedly ask whatever they want. Not a problem. Okay. Thank Great. Thank you. So क्या था हम कहाँ बोले थे आप कुछ हेलो हाँ जी हाँ गुड मॉर्निंग हाँ एवरीवन संजय जी गुड मॉर्निंग मैं पहली बार आपके सेशन में ज्वाइन हुआ हूँ हाँ जी और थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ लेकिन पूरा सेशन मैंने सुना है जी आपका। जी जी कुछ बातें मुझे करनी है तो ठीक है मैं अभी कब कल मिलेंगे हम कल संजय जी कल मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल मेरे सोसाइटी में मैं स्क्रैबल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ हूँ ठीक है नेक्स्ट संडे जब भी हमारी मुलाकात होगी हाँ नेक्स्ट संडे आएगी क्योंकि ये बात थोड़ी सी ऐसी भी है देखो जी। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तो सिर्फ 2-3-4 सेशन हुए हैं जी हाँ थोड़ा सा बहुत अच्छा चलते जा रहा है ये उसमें काले साहब ने कुछ अच्छे सजेशन भी दिए हैं हाँ जी हाँ इसको थोड़ा और फाइन करने के लिए जैसे कि अभी आत्मचिंतन की बात की जी और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जी जी ठीक है जी बिल्कुल लेकिन हमें ये बताना होगा कि भाई आत्मचिंतन कैसे करे कौन से मुद्दों पे करे अगर हम वही इसको डिस्कस कर मैनेज रहे हैं कर उसी पे अभी शुरुआत हुई है उस पे ही अभी नहीं शुरुआत बता रहा हूँ मैं हाँ जी जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चनर है जी जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम खुद को पूछ सकते हैं हम्म क्योंकि आत्मचिंतन एक वर्ड तो एक बहुत ग्लोबल वर्ड हो गया ये लेकिन प्रॉब्लम ये है सबको पता है ये करना जरूरी है इसका इम्पोर्टेंस है इससे बहुत सारी चीजें बदलने वाली है लेकिन किस प्रकार से करें किस मुद्दों पे करें ये भी अगर हम हमारे मेंबर्स को कुछ बताएं क्योंकि सब कुछ तो नहीं होगा उसमें एक थोड़ी जस्ट बिगिनिंग होगी इस प्रकार से हमको ये करना होगा तो ये थोड़ा फाइननेस का मैं सोच रहा था अभी वो तो क्योंकि वो बहुत जरूरी वो लास्ट टू है क्लासेस में हमने डिस्कस किया था वो उसी पे हम आ रहे हैं बट क्या होता है कि एक बैकग्राउंड बिल्डअप करना जरूरी होता है लाइक वी स्टार्टेड डिस्कसिंग एक्सपेक्टेशन जस्ट नाउ सो देयर आर 40 ह्यूमन क्वालिटीज व्हिच आई हैव लिस्टेड डाउन इन माय बुक दूसरा पार्ट ये देखा है कि हम सॉर्ट ऑफ लेक्चर के तरफ जा रहे हैं इसमें ठीक है एक या दो क्वेश्चंस आते हैं तो ठीक है लेकिन इसको भी थोड़ा सा अभी सोचना पड़ेगा देखिए इसमें क्या है आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट क्या होता है कि मेरी जब कौस्तुभ जी से बात हुई थी ये शुरू में लेक्चर मोड में रहेगा शुरू में कुछ टाइम तो तक मैंने ये 2-3 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जब भी हमारी मुलाकात होगी तो वी विल डिस्कस ऑन इट और अच्छा कैसा होगा इसके बारे में हम सोचेंगे और आपने तो बहुत मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है सब कुछ आपने जो बोला है और हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स को आपका जो एक्सपीरियंस है आपका जो इतना नॉलेज है उसका कुछ एडवांटेज मिले लेकिन वो होने के बाद भी अभी मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा उससे आगे जाने की कोशिश करें थोड़ा सा फाइननेस उसमें लाए बिल्कुल करेंगे वो तो करेंगे इनफैक्ट ये मैं भी अभी यही बोल रहा था कि
वंस वी स्टार्ट आत्मचिंतन, अब ये मेथड शुरू हो रहा है, मतलब लास्ट 2 क्लास में भी हमने डिस्कस किया था किस मेथड पे और किस चीज़ों पे। तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट ले रहे हैं जिस पे आत्मचिंतन करना है। इनफैक्ट मेरी बुक में तो पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। और उसको जब हम शुरू करेंगे वो प्रैक्टिस, तो फिर उसके बाद ये डिस्कशन इंटरेक्टिव मोड में ज़्यादा चला जाएगा अपने आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो वही ठीक है, वही बहुत वही बढ़िया, बहुत डायरेक्शन। बढ़िया, जी वही बहुत डायरेक्शन। बढ़िया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। नहीं, बहुत थैंक्स। बढ़िया। थैंक यू संजय जी, वील मीट नेक्स्ट संडे। ओके, सो ये एक्सपेक्टेशन पे बात हो रही थी, तो आप लोगों ने कुछ अगर इस पे चिंतन किया हो तो अब, मतलब मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि इस पे डिस्कशन भी करना है, आपको बोलना ही बोलना है। ऐसा नहीं कि वो ये स्कूल नहीं है कि वो भाई टीचर वो कोई बोल रहा है कि नहीं अब तुम बताओ, अब तुम बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली सेल्फ इंक्वायरी इज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग, बट देन व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू सेल्फ इंक्वायरी, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, तब वो सत्संग बन जाता है। फिर वो जब खुल के जब डिस्कशन होता है ना, तब उसमें मजा आता है। फिर वो कोई इनिबिशन सारे निकल जाते हैं, सारे वो आर्टिफिशियलिटी हम साइड में कर देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम ऋषिकेश जाते हैं तो लोगों को एक अच्छा अनुभव होता है, या हम केदारनाथ जाते हैं एक अच्छा अनुभव होता है। क्यों होता है? उस टाइम हम अपना बहुत सारा ये सब छोड़ जाते हैं पीछे, सब छोड़ देते हैं पीछे। अभी वो लास्ट टाइम कौस्तुभ जी के जो कजन नेफ्यू थे ना, वो एक आए थे, वो नहीं आया अभी, तो वो बता रहे थे ना, मैं वहां गया था त्र्यंबकेश्वर, गणपति अष्टविनायक गए थे, तो वहां पर उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो वो ऐसा होता है कि हम उस टाइम अपना वो जो ये चोंगा होता है ना, वो उतार देते हैं, और वहां सारे पॉजिटिवली थिंकिंग करने लगते हैं, बिकॉज दैट टाइम दे आर कमिंग विद अ पर्पस। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो टू ऋषिकेश 2015 ऑनवर्ड्स, आई वाज मीटिंग, वहां का जो वाइब्रेशन होता था ऋषिकेश का बहुत अच्छा होता था। अभी तो क्या है, वहाँ ड्रग्स व्रग्स क्या क्या हो गया, वो पूरा ऋषिकेश गंद मचा दी है। सो 15-16 में पहले ऋषिकेश यूज्ड टू बी वेरी पायस प्लेस, पीपल वर कमिंग, वर ऑल सीरियस सीकर्स। तो वहां का जो वाइब्रेशन होता था, जो एनर्जी फील्ड होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती थी। तो एक नेचुरल अलाइनमेंट रहता था, रेजोनेंस रहता था लोगों में, डिस्कशन, नेचुरल अलाइनमेंट रहता था। आप कुछ बोले, टोटल एग्रीमेंट ज्यादा रहता था, डिसएग्रीमेंट नहीं होता था, कन्वर्सेशन वर नेचुरली अलाइंड। अब जैसे कहते हैं ना, अल्टीमेटली अगर आप सोचो साइलेंस, अल्टीमेटली विल रीच साइलेंस। कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। वैराग्य क्या है? अल्टीमेट एम इज वैराग्य। किसी किसी इंसान की जरूरत नहीं है। योगी अपने में ही खुश रहता है। योगी तो खाना भी अकेले में खाता है। मैं 2016 में भंडारा में गया था, टाट वाले बाबा जी की गुफा में 1000 साधु खा रहे थे। और वहाँ के जो स्वामी जी हैं, जो टाटवाल बाबा जी के शिष्य थे, ही इज नाउ 90 ईयर ओल्ड, ही इज फ्रॉम मजगांव डॉक्स। एट 15, एज ऑफ 15 he went there. So after the Bhandara, I saw he fed everyone. And after the Bhandara, he went in one corner, पीठ उधर करके अपना अकेले खाना खाए। आई हैव नेवर सीन हिम शेयरिंग फूड विद एनीवन। वो अपना अकेला खाता, वो कभी लोगों के साथ नहीं खाता, क्वाइटनेस में खाना खाते हैं। तो खाने का भी एक्चुअली खाने पे फोकस होना चाहिए। खाने कहते थे, खाने खाते नहीं, हम खाने पे फोकस छोड़ के बातों में ध्यान लगाते हैं, बट खाना भी। तो योगी, योगी से बहुत कुछ इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, बट हम लोग कितना योगी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं? कितने हम लोग योगियों से मिलने जाते हैं? वो जो योगी बैठे हैं केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ के आगे वसुधारा फॉल, सतोपंथ के रास्ते में जो माना के आगे जो योगी हैं वहां पर, उनसे आप मिलो, क्या मजा आता है। अरे उनका तो वहाँ वाइब्रेशन ही इतना अलग होता है। वहां आपका आधा अशुद्धियां सारी निकल जाती हैं, पर वो यहाँ आके फिर पकड़ लेते हैं, ये प्रॉब्लम। वहां आके वो उनसे हम क्या इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि भाई उनका ये सब चीजें ऑब्जर्व करने की, वो खाना कैसे खा रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके विचार कैसे हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। किसी भी चीज से हम सीखते हैं, इंसान से, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज और ये जो हम फेस रीडिंग बोलते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये एक उसका ऑरा होता है। हम सबका एक ऑरा होता है, तो जिसका ऑरा है उसको पकड़ना जरूरी है, अच्छे ऑरा से कनेक्ट होना जरूरी है। बट समटाइम्स आर इम्प्योरिटीज आर सो हाई दैट वी ओनली कनेक्ट विथ नेगेटिव ऑरास। ऐसा होता है, बहुत से लोग हैं, आप देखना, जो नेगेटिव लोगों के साथ ही नेचुरली कनेक्ट होते हैं। दे हैव द फियर टू गो टू, वो इग्नोरेंस से इतना ज्यादा वो गंदगी अंदर इकट्ठी हो जाती है, उनको डर लगता है कि अब मैं किसी के पास, जैसे आप 12th पास करे हो, आप यू विल बी अफ्रेड टू गो टू अ साइंटिस्ट। अरे मैं इसके सामने कैसे जाऊंगा, है ना?
बट हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये क्वालिटी है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। यू शुड बी नाउ। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आता है फिर, और थियोसॉफी का जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब अपने अपने। तो जो झाड़ू भी लगा रहा है सड़क पे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो झाड़ू नहीं लगाएगा तो कल आपको ही तकलीफ होगी। और आप जो कर रहे हो, तो भगवान ने ये नियति ऐसी बनाई कि सबका को कुछ कुछ तो करना है ना। किसी को तो गरीब बनना है, नहीं तो वो सारे अमीर हो जाएंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा। और झाड़ू लगाना ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, यही तो हमारा यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों कर रहे हैं। मैं तो अपने घर में झाड़ू भी लगाता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, बर्तन भी साफ करता हूँ, वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाता, कपड़े भी धोता हूँ, अपनी गाड़ी भी खुद साफ करता हूँ जाके नीचे। मैं आई एम नॉट वरीड दैट माय नेबर हु हैज गॉट 2 BMW कूपे और क्या है जैगुआर कूपे है, एंड उसके 4 ड्राइवर खड़े होते हैं, मैं जाके अपनी गाड़ी खुद साफ करता हूँ। सो क्या है इसमें, किसको दिखाना। तो हम लोग यही है कि वो क्या देखेगा, वो क्या सोचेगा, पूरे टाइम तो दिमाग में वही चल रहा है, वो क्या देखेगा, वो क्या सोचेगा, उसकी गाड़ी कौन सी है, मेरी गाड़ी कौन सी है। अभी तो बहुत से लोग तो इसी में ही फंसे हुए हैं। So trying to orient by seeing others. The discussion on social identity is another big discussion. What social identity we are trying to create and what is true identity? What is my true identity? Self-reliance. Self-reliance, self-reliance, आत्मचिंतन। अगर आप देखोगे आत्मनिर्भर, आत्मचिंतन, वही तो अ, अपना असली स्वरूप है। So their thoughts are not evolution नहीं उनका। इवॉल्व नहीं हो रहा उनका। हो सकता है they are lagging behind us. Yes. So many 2-3 So incarnations. they are there. So they are there to help us to see that ऐसे भी लोग हैं, हम एटलीस्ट वैसे नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इवॉल्व होंगे। वी शुड हैव एम्पैथी। Planes are big different. एम्पैथी, बस एम्पैथी चाहिए कि हाँ हम शायद अपने हमसे इसके सीख लेगा। अगर मैं नीचे जाके गाड़ी साफ कर रहा हूँ तो शायद हमसे कुछ सीख लेगा वो क्या सोचेगा हमको देख के। अल्टीमेटली तो वही सोचेगा यार ये तो बंदा सिंपल आदमी है तो अपनी गाड़ी भी साफ कर लेता है, इसको चिंता नहीं है। अब और ऐसा क्या है, आपने बड़ा बड़ा काम किया है, बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम किया है, तो अगर वो सच्ची में बैठ के कंपेयर करे तो कुछ नहीं है हमारे सामने। पर ठीक है, वो खाली ईगो से भरा हुआ है, वो चल दिखाने के लिए वो सब कर रहा है। बट क्या है, that's why I say what should be seen is the wisdom of a person, not the ultimately। हम लोग योगी के पास जाते हैं हिमालय में क्यों? Ultimately when you are really seeking wisdom, where do you go? You go to Himalaya, you don't go to the guy with crores of rupees, no। विजडम के लिए तो हम फिर वहीं भागते हैं ना जिसके पास कुछ नहीं है। जा रहे हैं उसके पास जिसके पास कुछ नहीं है, पर चाह रहे हैं सब कुछ। विजडम मांगने जा रहे हैं जिसके पास कुछ नहीं है, पर उसको आइडियलाइज नहीं कर रहे। It's very contradictory just to the people. That is- To be businessman, business people. But one time come, they will go to one go to what they imagine. अभी कितने Surrender before that. या कितने लोग Because of contradiction. कितने लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं। जाते हैं मंदिर में एक दिन में जाते हैं ना वो है। बट वो सबका जर्नी है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कंपैरिजन से। वो दे आर ऑल्सो देयर टू टीच अस कि व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट राइट। देन वी लुक एट समबडी एल्स। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, इंस्पिरेशन हमें कहाँ से लेनी है, वो इसलिए तो हम 10 जगह देखते हैं ना। वी गो टू टेम्पल, वी गो टू, नहीं वो वाले टेम्पल में जाते हैं। तो जैसे देवरा बाबा एक होते थे जो उनका बोलते हैं कि एज वाज 400 ईयर्स और 500 ईयर्स। तो आई वाज इन हिज आश्रम फॉर 2 months इन 2022। तो वहां पर एक बहुत अच्छा एक कोट लिखा हुआ था, बहुत ही सुंदर कोट था जो मेरे को याद रहता है। जब सबसे मिलना बंद हो जाएगा तब भगवान मिल जाएंगे। तो जब तक आदमी भटकता रहता है, भटकना जरूरी है, खोजना है तो भटकना पड़ेगा। अब उसको वेदर यू कॉल इट भटकना और यू कैन कॉल इट एक्सप्लोरेशन, इट्स अप टू यू। So if you are seeing your wandering as a exploration, then it is very good. But if you seeing wandering, a lot of people will say when I'm traveling, they say हाँ अब तो अभी आपको आप जाओ जाओ। मैंने कहा तुम्हें मिल गया क्या जो मेरे को ज्ञान दे रहे हो? मैं तो घूम हो जाओ, तुम्हें मिल गया क्या? तो तुम अपना भटकना देखो, मेरा छोड़ दो। So there are people to comment you. Moment you get people in your life, you will get tons of advice. कुछ नहीं मिलने वाला। इंसान आपकी जिंदगी में सिर्फ एडवाइस ही देने आता है, खुल के थोक के एडवाइस देगा। चाहे आपका बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा वो भी एडवाइस देगा, पत्नी तो देगी, हस्बैंड देगा, माँ बाप देंगे, सब एडवाइस दे रहे हैं।
और आप देख लेना एक दिन आएगा जब कोई काम नहीं आएगा आपके, एडवाइस फ्री में सब बांट रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे कुछ करोड़पति या अरबपति फ्रेंड हैं जो एडवाइस ही बांटते हैं। कभी प्रॉब्लम होगी, कभी नहीं बोलेंगे 2 रुपए तेरे को दे दें, पूछेंगे भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा, एडवाइस फ्री की देगा 1 करोड़ की। मैं तो एक को बोल दिया, तूने बहुत एडवाइस दे दी पूरे लाइफ में, तू मेरे को एडवाइस ही देता रहा, मैं सुनता रहा, आई टुक इट, बट नाउ एडवाइस हैज बिकम टू मच फॉर सो आई हैव कट हिम ऑफ। एंड व्हेन यू रियलाइज दैट यू कट ऑफ एवरीबडी बिकॉज़ एवरीबडी इज गिविंग लाइफ एडवाइस ओनली, so and who's actually evolved, like Lalita Mataji in Gangotri, she told, go to only that person who's evolved. But why Vrindavan में जाइए, I lived in Vrindavan for 1 year last year, full of businessmen. I've lived there. I've lived in so many ashrams also. 2 महीने देवरा भाव आश्रम में रहा, एक आश्रम की बात बताऊंगा ना आपको, you will be shocked. So that's another big story. The internal working of ashrams. My second book is on, little bit I've covered ashrams, Vrindavan, Rishikesh ashram, Devprayag, Uttarkashi, and real saints are in beyond Gangotri and beyond Kedarnath, beyond Badrinath. They want to be away, and आपको वाकई में wisdom लेनी है तो उधर जाके लो ना wisdom. We had some interesting saint, Madam Blavatsky आई यहाँ पर, with so much wisdom. How much we have benefited from that wisdom. Annie Besant ने इतना सब लिखा, but how much are we benefiting from the wisdom? तो वो सब बोलते हैं आप खुद ही, life is the biggest book, learn from that book. And book reading से कुछ नहीं होने वाला, ठीक? जी Professor Taini, हाँ he was a theosophist. जी He was a professor in Allahabad University. हाँ हाँ Then Varanasi we have a Indian center. जी वहाँ पे सभी और इंटरनेशनल सेंटर है चेन्नई। हम्म तो वो we got interested in Kashmir, Shavik. उन्होंने started learning and after retirement he stationed himself in Chennai. Okay. Center. हाँ. Near. आर्या Then he wrote some books, हाँ हाँ experimented on himself. हम्म Experimented on himself. हम्म. He how to bring philosophy in your life. Yeah, that is the ultimate aim. Yeah, reading. But are you bringing it in your life? Yeah. तो उन्होंने आगे किया, Hmm. ये बुक किया, सेल्फ कराके, because you say okay, ये पढ़ो वो पढ़ो, there is a certain theme in that. Our Indian lies in the secret of Madam Blavatsky. Hmm. Everybody else is now interpreting and trying to follow that. ये उनका ट्रेन ये था, ये आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ. कहीं जाने की जरूरत नहीं, you are where आप जहाँ है। But ये realization बाद में आता है. This realization which Mr. मारुति जी सिनारे जी बोल रहे हैं कि वो प्रोफेसर टेनी ने बोला कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रियलाइजेशन जाने के बाद आता है. जाने के बाद आदमी भटकने के बाद, जाने के बाद जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा. आप टू रीच द ट्रुथ यू गो थ्रू लॉट ऑफ फॉल्स, बिकॉज व्हेन यू से दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, अल्टीमेटली वाई अब लाइक महर्षि रमन्ना टॉट डुअलिटी नॉन डुअलिटी. उन्होंने बोला आप यही आत्मचिंतन करो, दिस इज अनदर मेथड. महर्षि रमन्ना निसर्ग गुरु महाराज वो टॉट अद्वैत. अद्वैत में था कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं. पता लगा कुछ भी नहीं हूं तो फिर क्या हो. बट आप वी आर कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद एवरीथिंग एल्स. तो आप सोचते हो मैं बाप हूँ, कुछ नहीं हो. तुम बाप भी नहीं हो, माँ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो. एक्चुअली में कुछ नहीं हो. अगर यही आत्मचिंतन है तो ये एक और तरीका है, और अल्टीमेटली आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है फिर. तो वो तो बहुत इवॉल्व लोग होते हैं जो वहीं रह के, जैसे कुछ लोग वहीं रह के इवॉल्व हो गए, बहुत से लोग हिमालय में जाके इवॉल्व हुए. अब बात करते हैं ज्ञानगंज की, कल्पग्राम, सिद्धाश्रम, शांग्रीला, जो भी नाम है, वहां पर लोग क्यों गए, अल्टीमेटली वहां है. अब ऐसे तो बहुत सारे, आई डोंट नो वेदर दे आर ट्रू एटलांटिस है, ये है इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन है, डायमेंशंस हैं. जो हमारे फाउंडर्स हैं थियोसॉफी के, उनने बोला है कि ये सारे डायमेंशंस हैं विच आर लॉजिकली देयर. ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी तो हम इसी पे कर रहे हैं डिस्कशन. बट ये वाले डिस्कशन जो है एक्चुअली थियोसॉफी में
वो विभा सक्सेना जी एक बुक पे क्लास ले रही है मंडे को, मंथ को। अगर आप वो बुक को देखो, वो बुक उपनिषद पे अलाइन है टोटली। वो धर्म और कर्म पे ही बात कर रही है। मैंने तो एक ही क्लास सुनी थी ना, मैंने बुक पढ़ी है, बट आई कुड अंडरस्टैंड वो बुक क्या है। और वो बहुत बढ़िया बुक है। अगर तो थियोसॉफी में बहुत लिटरेचर है, बट किस बुक से स्टार्ट करें ये जरूरी है। अगर आप सीधे सीक्रेट डिवाइन प्लान पढ़ने लग जाओगे तो क्या फायदा। एनी बेसेंट की बुक आप कॉन्शियसनेस की पढ़ने लग जाओगे, आपको एबीसीडी समझ में नहीं आएगी। सो हु कैन रीड दैट बुक, हु कैन रीड व्हाट बुक। तो कौन सी बुक किस सीक्वेंस में होनी चाहिए वो भी जरूरी है। तो मैं भी इस पे थोड़ा काम करूंगा। मैं अडयार जा रहा हूँ फेब में पांडे जी के लेक्चर के लिए। उसके बाद मैं 5 दिन कृष्णमूर्ति जी की फाउंडेशन में भी जा रहा हूँ। तो मैं कुछ जो हमारी बुक्स है ना यहाँ पर थियोसॉफी की, आई विल गिव माय रिकमेंडेशन कि आप ये बुक पहले पढ़ो, ये बुक पहले पढ़ो, ये बुक पहले पढ़ो। बुक्स तो सब है, बट कौन सी बुक पहले पढ़नी चाहिए। कोई नया आता है थियोसॉफी में, कौन सी बुक वो पहली पढ़े, ये किसको मालूम है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का इतना अभाव है, सब कुछ है। हाँ, बट वी विल वर्क ऑन दैट ना, कि हम एक लिस्ट बना देंगे कि कोई नया आता है उसको एक प्रिंट आउट दे दो कि आप ये बुक्स पढ़ो, पहले आप ये वाली बुक पढ़ो, पहले ये वाली बुक पढ़ो, पहले ये वाली बुक पढ़ो। इनसे हमने स्टार्ट, ये जो ग्रुप है, हाँ, डॉक्टर है, जिसके बड़े प्रोफेसर ही इज रीडिंग माय बुक्स इसको मैंने काम किया आल्सो। उन्होंने। तो ये उनका क्वेश्चन था, मतलब ये जो नया आदमी आता है क्वेश्चन है, तो फर्स्ट दास का बुक आपने ले लिया। अरे वो तो जिनार दास तो बहुत ही बढ़िया है, उनकी बुक पढ़ लो, वो भी बहुत बढ़िया है। तो अभी इसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम संडे प्रोग्राम 9:30 की असेंबली है, 40 मिनट्स का यहाँ पे समाज, भारत समाज पूजा करके ये पूजा है जी। वहाँ पे कोई लिया है, बाकी फॉर्मेट नहीं होती पंडित सिंह काशी की फॉर्मेट पूजा वो थी 40 मिनट की। बाद में भी यहाँ पे हमारी 10-15 मिनट पूरी हिंदी की प्रोग्राम। वो तो मैं आता हूँ, देखता हूँ संडे को। आई नो, हाँ आई नो, आई कम ऑन संडे। खाली प्रोसेस पता। बाद में यहाँ पे चाय वगैरह होती है, वो तो सब मेरे को मालूम है। We have started a book on philosophy questions and answers वो तो मालूम है मेरे को। by Pauri. पावरी, हाँ। We are systematically teaching that. We are trying नहीं, that no, what I'm saying is we are teaching one book right now, but if a new person comes, what is a recommended book for a beginner? Suppose may not be Pavri's book, maybe some other book. So that if we can make a list of books, and so because books are lying, but nobody is taking it. There is so much of literature here. Who can read this literature? So like last year I was in Devprayag. Then Devprayag, there is one Bhaskar Joshi ji. He has a observatory there, planetarium. वेदशाला है वहाँ। और उनके यहाँ हजारों स्पिरिचुअल बुक्स हैं, thousands of books even in German language. He was a big ज्ञानी and sadhak. His father Chakradhar Joshi ji, and astronomer and an astrologer. And वो बद्रीनाथ के सबसे माने हुए पुरोहित में से हैं, भास्कर जोशी जी उनके बेटे जो हैं। आप उनकी लाइब्रेरी में जाके बैठो, मैं लाइब्रेरी में रोज 4 घंटे बैठता था। क्रिया योगा पे बुक है, किस पे बुक है, सब पे थियोसॉफी पे बुक है, जर्मन लैंग्वेज में बुक है, फ्रेंच लैंग्वेज में बुक है, क्या कलेक्शन है। बट आप कितना टाइम वहाँ दे सकते हो। बहुत लिटरेचर है यहाँ, इतना लिटरेचर है, बट व्हाट इज द वे पर्सन शुड गो। आप किसकी बुक पढ़े, जिनार दास जी की पढ़े, एनी बेसेंट की पहले पढ़े, ब्राविट्स्की जी की पढ़े पहले। वही हम तो मैडम है अनिकेतन, he was among all these people, he was the best teacher. Yeah. तो उन्होंने मेथड लगा दी कैसे पढ़ना है। तो व्हाट खाली मेथड नहीं लगा दी, तो खुद के there are 7 manuals है, 7 manuals, उसमें बेसिक्स कवर हो जाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी। जो विभा सक्सेना जी की वो जो बुक पढ़ी, वो कौन सी बुक है? खुद का बुक नहीं, थियोसॉफी की बुक पढ़ी मंडे को। हाँ? नहीं, मंडे को जो विभा सक्सेना जी की बुक पढ़ती हैं, वो एक बुक बड़ी अच्छी है। वो मेरे को तो वो बड़ी अच्छी लगी। वो बिगनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। वो पावर ऑफ थॉट है शायद, ऐसी कुछ पावर ऑफ थॉट ऐसी एडवांस है वो। मेरे को तो वो बिगनर के लिए अच्छी लगी। मैं बोलता मैं जब एमए साइंटिस्ट जी। ये मेरा पहले से रहा है कि स्टडी करना है, करना चल रहा है। I'm working on a course now, engineering, तो ये यहाँ पे जब मैं आया जी, यहाँ पे डॉक्टर भूले करके इंचार्ज पे यहाँ पे
कोई भी प्रेजेंट बैठेंगे वो भी कभी ये नया आदमी आ रहा है आई गेस कम सिटी एंड लिसनिंग एक दो बार बैठने के बाद उसने स्टार्टेड टॉकिंग विद मी इंटरेस्टिंग मैं इन लोगों को ऑफ कर दूं, नहीं तो हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। ये लोग ऑफ पीपल ऑनलाइन इफ दे वांट दे कैन लॉग आउट बिकॉज वी आर नाउ हैविंग अ डिस्कशन हियर which you may not be able to hear, I think, because we don't have a mic. We could have, next time we'll see if we can get a mic. So you can hear others also, because somebody is speaking and speaks for long, you may not be able to hear. So you want, Okay, great. and Yeah, thank you. if you have any, or if you have any question, you can ask, then we can continue. Sure. जी जी, सेशन खत्म कर thanks. एक बार 10 मिनट और No, I'm just giving the option कि if they want, they can log out. Otherwise, they can't listen to you and they will be sitting. हाँ जी, बोलिए. So, my point is that book reading is, the point was that the book reading is there, which book to read to start with. But ultimately, if you don't do self-inquiry, book reading ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. Even योग सूत्रा की जो क्लास होती है यहाँ, योग सूत्रा बहुत बढ़िया बुक है. पतंजलि योग सूत्रा है वेरी गुड बुक. उसमें पूरा मेथड दिया हुआ है. मैंने जो बुक लिखी है वो भी वही है एक्चुअली, बट डिफरेंट मेथड, सेम मेथड डिफरेंटली दिया, क्योंकि क्या है, वो बुक 5,000 साल पहले लिखी थी. अब जैसे एनी बेसेंट की जो बुक है कॉन्शियसनेस वाली, इफ यू सी देयर इज अ ऑडियो इन ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन यूट्यूब. सो आई वाज रीडिंग एनी बेसेंट्स बुक ऑन कॉन्शियसनेस ऑन ऑनलाइन यूट्यूब पे. तो उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, व्हाट इज द फीडबैक. अब व्हाट हैपेंस, हम महाभारत लिखी थी 5,000 साल पहले, ये स्क्रिप्चर्स वर रिटन 5,000 years बैक. तो somebody commented that ये बुक 100 साल पहले लिखी थी. अब मेरे को इसका रेलेवेंस समझ में नहीं आ रहा, जो लैंग्वेज है ना, बिकॉज इफ टुडे इफ यू राइट अ बुक, इट मे बिकम, द कंटेक्स्ट में बिकम इररिलेवेंट आफ्टर 200 years. जो कंडीशन होती है ना, जैसे 400 साल पहले कोई बुक लिखी थी, वो राजा रानी के बारे में बात कर रही है, अभी कहाँ राजा कहाँ रानी. आज की तारीख में हमारा राजा रानी तो हम ही है. तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन आवर डे टू डे सिचुएशंस वी आर एक्सपीरियंसिंग rather than what somebody experienced 400 years. The culture was different, the way of living was different, the words were used were different. अभी तो वो words भी समझ में नहीं आते. Now how many of us are using pure Hindi word, how many of us understand Sanskrit word? We are using those words, we get lost in those words also. This is the practical problem I'm telling you, because when you read books written, so if they are not simplified to make people understand, और उसमें अगर हम डिफिकल्ट वर्ड यूज करने लगे तो आदमी वहीं अटक जाता है. ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब कोई बुक पढ़ता हूँ पुरानी, उसमें वो वर्ड में फंस जाता हूँ. वो वर्ड मेरे को रेजोनेट ही नहीं करता. वो समझ भी लेता हूँ, तब भी जब वर्ड आता है वो मैं उसको इमेजिन ही नहीं कर पाता. यू कैन इमेजिन व्हाट यू सी, इफ यू नॉट सीन एंड यूज्ड अ वर्ड, वो वर्ड मेरे को हमेशा वो फॉरेन लगता है. happening in ऑल रिलीजन, religion, even all the language. Suppose Yes. in Marathi, same. in Marathi is very different as 400 years. I met one learned professor from BHU. He's done 2 or 3 PhD in Sanskrit, and he's a Gosai of ये बाके बिहारी मंदिर, which is a famous temple of Vrindavan, most famous temple. उसके गोसाई हैं वो, और BHU से उन्होंने वो किया हुआ है संस्कृत में 2-3 PhD. वो मेरे को मिल गए हेड़ा खान बाबा आश्रम में लास्ट ईयर. तो ऐसे आधा घंटा हमारा डिस्कशन शुरू हो गया. गॉड डिवाइन प्लान था, मिल गए. और मैंने उनसे ये पूछ लिया, किससे पूछो, कि मैं उनसे पूछा ये गीता प्रेस के जितने ट्रांसलेशंस हैं, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगते. एक ही चीज को ये 50 बार बोलते हैं, और इतना लंबा ट्रांसलेट कर दिया, 2 लाइन का दोहा, इसको 20 पेज में कहानियां पे कहानियां लिखे जा रहे हैं. आदमी सेचुरेट हो जाता है. तो 50 पेज बाद गीता पढ़ना बंद कर देता है, महाभारत पढ़ना बंद करता है, रामायण पढ़ना बंद क्यों कर देता है. कितने लोग पूरी पढ़ लेते हैं, ये फैक्ट है. तो ही एग्रीड, तो ट्रांसलेशन ठीक नहीं है. Can we end up today? Let's end up now. Have a prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee, know he is therefore one with every other. धन्यवाद. Thank you.
2 मिनट बात करें। हाँ बात करते हैं, जिसको बैठना है बैठ सकते हैं, जिसको बैठना है बैठ सकते हैं। आप चलिए, थैंक यू। ये जो प्रे है, हाँ जी, it has been taught in the schools, all types of things. That is the main, if I understand why is at the lower level, primary But level, nine- क्योंकि हम सब एक बट 99% प्रेयर ऐसे ही बोलते हैं, कोई इसका अंदर नहीं लाता, समझता भी नहीं है बहुत लोग। डेली करने के बाद क्या होता है, इंप्रेशन बढ़ जाता है ना, अंडरस्टैंड गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र पीपल लोग पर्टिकुलर दिस इज आइडिया है, जो भी हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं उसको अगर अंदर, अभी जैसे ने बोला ना, उनने बोला ना वो आपके प्रोफेसर जी ने, टहनी जी ने, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दी।